प्रशांत सर, मयंक सर जो है वो डायरेक्टर हैं, चेयर हैं। मैम मयंक सर जो है वो चेयरमैन है। ये जो थलीर वर्टिकल है जो फोकस्ड ऑन स्कूल किड्स है, तो इसके वो चेयर हैं वाया भोपाल के, है ना। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो बस ज्वाइन, मेरी जस्ट अभी बात हुई है, वो ज्वाइन कर ही रहे हैं 1 मिनट में। ओके, तो वो जस्ट स्टार्ट करेंगे। आई हैव स्पोकन टू हिम ओवर द फोन। ये आप लाइव पे हैं, फेसबुक पे लाइव जा रहा है आपका स्ट्रीम। ओके, चेक। यस, इट इज लाइव। Hello, and everybody who is here, you're most welcome. मयंक कपूर जी, सर, मयंक सर, हेलो। Yes. Good afternoon, Preeti ma'am. How have you been? Good afternoon, sir. I'm very good. I can't see any of your faces. I can. Okay, Mayank sir, now I can see you. Am I able to you? Yes. I'm doing good, sir. How are you? I'm very well, and we are actually. I spoke to many parents, and the parents are indeed have no clue and idea that during the lockdown, how much mental pressure the children actually went through, emotional imbalance. They were not properly prepared. We as adults, we were not prepared, and how can we expect the toddlers or the children, teenagers who has their own psychology, they have their own mindset, they are still to nurture, they are not molded properly. It is our role and it's our responsibility to mold them, to guide them, and many parents doesn't have any idea what to teach them in this period. So I'm pretty sure that a lot of people with us, who has joined us on Facebook, I welcome all, and I'm looking forward that everybody will have a fruitful session with ma'am, with you, and to everyone who is live with us on Facebook. I would like to introduce our guest speaker of our today's topic. The topic of our today's session is training session on parenting for child behavior and other child related issues in changing times. And our esteemed guest is Ma'am Preeti Sadhu Pendekar. She is a consultant psychologist. She is a registered mental health professional recognized by RCI India. She completed her schooling and graduation from Bhopal, studied master in clinical psychology from BU Bhopal, completed her specialization in rehab psychology from IGNOU New Delhi. She is a trained CBT hypnotherapist from Hypnotherapy Institute, San Diego, California, USA, and done DCMH from NIMHANS, Bangalore. She has a vast experience of 9 years in the field, including her experience as a lecturer and psychologist at AIIMS, Bhopal, and assistant professor at People's Medical College, Bhopal. She is a co-founder and director of State at Neuropsychiatry Clinic, that is Brain and Mind Healing at Bhopal itself. Happily married to Dr. Sheeras Pendekar, who is himself a MD Psychiatry from PGI Chandigarh. Both of them are providing holistic mental health services under one roof in a warm and caring environment. They have a healed an experience of more than 1,000 patients and have successfully encouraged many more to begin again and live again with a very fruitful life perspective. A recent addition is telemedicine consult in times of corona, where they are providing time valued consult and at home online services. That is why doctor is here with us as a part of a session. She also runs an NGO, Samyak Darshan, whose primary goal is to destigmatize mental health issues and to reach out to more people who are suffering
quietly. I mean, this is something which I need to add, that people who are suffering quietly are never being emphasized on, or we don't even talk about them because it's a mental taboo. So we as a society don't prefer to appreciate that how we can give out the best as a society to them, and you are working in this field for them. That is commendable, and those are some values which I'm pretty sure a lot of young minds will be taking inspiration from you, doctor. I believe the And same, Mayank. as well as you are also a trusted wellness coach to many, help them to seek abundance of consciousness and experience greater feeling of self motivation and insight to self. You are very simple, creative, and curious learner that I have been known to you since I have got connected with you for this session. And ma'am, we again welcome you with a warm regards and high respect, that kindly teach us, acknowledge us, guide us, advise us, the parents or the relatives or the caretakers, the guides of children, how to nurture our tomorrow's nation building. And as this session is being collaboration with Bhopal Roundtable 257 Roundtable India, with the collaboration of YICII Bhopal under Thaler chapter. And the concept of our session is to nurture the young minds so that we can mold them in a better way, because they're going to run the nation tomorrow. So our concept is to build the nation properly, and in that motive, we have got an esteemed speaker, Dr. Preeti ma'am. Over to you, ma'am. Thank you, Mayank, for taking all the time to read all my bio. And I really look forward to teach everything from my experience. And I believe जितने भी parents से मैं मिलती हूँ, इनफैक्ट जितने बच्चों से मैं मिलती हूँ, उतना ही मुझे realize होता है कि हर parent almost PhD कर लेता है when they are a parent. They do a PhD in social science, in nursing, in psychology. They are amazing. They are trying the very best. And despite that, कभी ऐसा होता है कि bonding नहीं हो पाती है, because it is a process and there is no guideline for being a kid and there is no guideline for being a parent. So true, it like both of the things, दोनों तरफ से वो effort लगता है. And today we are here to talk about parenting. So let me help those children and help those parents to know their kids better. So today we will be covering the parenting styles that can affect the upbringing of your kid and how you can improve the communication with your children. This is the first session of the two, and tomorrow we will be covering more things where how to manage the problem behaviors and how you can analyze your kids' behavior, and some of the concerns that we face today, like too much of screen time, that we will be covering tomorrow. So let's go ahead with the today's topic. So first of all जो मैं अगर पूछती हूँ किसी पेरेंट से कि एक गुड बॉय या गुड गर्ल कौन होता है, तो शायद पेरेंट्स मुझे ये उत्तर देते हैं, और शायद अभी जो लोग देख रहे होंगे या बाद में भी इसे देखेंगे तो आई गेस उनका उत्तर कहीं ना कहीं इस डेफिनेशन में आता है कि जब बच्चा कुछ बोल भी नहीं सकता है, जब उसके पास वोकैबुलरी भी नहीं होती है, तब भी हम उसे इनकरेज करते हैं ये बोल के कि गुड बॉय है, गुड गर्ल है, उसने आपके मुताबिक कुछ किया तो he or she becomes a good girl or a good boy. And as soon as एक पैरामीटर बना दिया जाता है, एक पैरामीटर हम बनाते हैं, एक सोशली एक्सेप्टेड वे में हम उन्हें सिखाते हैं कि एक गुड बॉय गुड गर्ल ऐसा करता है, और जब भी वो कोई ऐसा बिहेवियर करता है जिससे आप डिसएग्री करते हो या उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको नहीं लगता कि उसने वो करना चाहिए, आपका पेशेंस थिन है या वो एक्चुअली में कोई मिस्टेक कर रहा है, दैट डजंट मैटर, बट यू टीच द किड कि ये बैड बॉय का बिहेवियर है, ये बैड गर्ल का बिहेवियर है. तो अगर मैं उसे एक लाइन में कहूँ तो एवरीथिंग, एवरी आंसर दैट यू विल कम अप विद विल सम अप टू दिस कि जो बच्चे मम्मी पापा की बात मानते हैं वो गुड बॉय और वो गुड गर्ल की कैटेगरी में आ जाते हैं, अदरवाइज दे बिकम अ बैड बॉय और अ बैड गर्ल. सो नाउ दैट वी हैव अ कंसेंसस ऑन दिस, माय नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इट कि आज पेरेंटिंग का वर्कशॉप है, तो व्हाट मेक्स अ गुड और स्मार्ट पेरेंट?
by asking that question, I have no doubts in your abilities as parents because you're doing the best. But despite that, I would just like to bring it up कि क्या characteristics होती है of being a good and smart parent. Any insights, Mayank? Ma'am, as a makes a smart or good parent, as I told you in the start of the session itself, that हमारे can I speak in Hindi as well, like both Hindi and English? Sure. हम बच्चों को एक पेरेंट एक बेसिकली कुम्हार होते हैं और बच्चे मिट्टी के घड़े होते हैं. जिस तरह से बच्चों को हम मोल्ड करें, नर्चर करें, वैल्यूज देके, उनको कल्चर देके, अपब्रिंगिंग से और उनको गाइडलाइन से बता कि कितने उनको एक्सपीरियंसेस फील करा सकते हैं, और जिस एक्सपीरियंसेस के बेस पे उन्होंने किया, और उनको भी कुछ बच्चों को भी एक्सपीरियंसेस खुद हैंड्स ऑन करवाएं ताकि वो मोल्ड हो सके. और एक बार जब बच्चे की एक एज सर्टेन आ जाती है कि वो मोल्ड हो जाए, तब तक वो बच्चे को प्रिपेयर करना तो पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी होती है. और वो कितने अच्छे एक्सपीरियंस से बच्चों को करा सकते हैं. बैड एक्सपीरियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड गुड एक्सपीरियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट टू मेक गुड डिसीजन. So this all like makes I believe that making new mistakes should be a priority. correct. So I will just sum up everything that you said, and I believe all my viewers right now and at a later stage they will agree कि एक अच्छा पेरेंट शायद सबकी डेफिनेशन में ये होता है कि वो प्यार करता है, वो केयर करता है, वो अपने बच्चे को समझता है, वो उसकी हर नीड समझता है, हर नीड पूरी करता है, वो चाहे इमोशनल नीड्स हो या इंस्टीट्यूशनल नीड्स हो, फाइनेंशियल नीड्स हो, कहीं उसे आना जाना है, गाड़ी की जरूरत है. सो एट एवरी स्टेज पेरेंट्स आर देयर. तो आई गेस ये कुछ क्वालिटीज रहती हैं जो हमें लगता है कि पेरेंट्स में होनी चाहिए. बट डिस्पाइट दैट व्हेन आई इंटरेक्ट विद पेरेंट्स इन काउंसलिंग सेशंस, दे कम अप विद दिस थिंग कि हमने इसे सब कुछ लाके दिया, हमने हर जरूरत पूरी की, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है. But despite that, we don't know what is up with this boy or with this girl. We don't know what is going wrong or what are we doing wrong. So they feel cheated in a way कि अच्छे से बच्चे communicate नहीं कर पाते हैं, या पेरेंट्स उनसे वैसे communicate नहीं कर पाते हैं जैसे वो चाहते हैं. So let's see कि all ये जो सारी चीजें मैं बोल रही हूँ ये कैसे existence में आती है. I am giving you a situation here. एंड ये सिचुएशन प्रीटी मच सबके घर में होती है, छोटा बच्चा हो, किंडरगार्टन का हो, या बड़ा बच्चा हो जो कॉलेज जाता हो, या इवन कभी कभी हस्बैंड वाइफ के बीच में भी ये होता है कि घर आए, सामान रखा, जूते यहाँ, मुझे वहाँ, टी शर्ट यहाँ टंगा है, ये फेंक दिया यहाँ. तो एवरीथिंग इज जो घर जैसे ऑर्गेनाइज रहता है, जैसे ही आप घर में होते हो, आते हो, एंटर करते हो, आप सारी चीजें ऐसे 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 फेंक देते हो. तो जो घर को ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, जो ऑन मोस्ट फ्रंट्स इट इज मदर्स, तो उनका ऐसा एक्सपेक्टेशन रहता है कि नहीं सब जगह पे रखना चाहिए, और फिर वो गुस्सा करते हैं कि क्यों जगह पे नहीं रखा, जल्दी रखो, समय पे मिलेगा, जगह पे मिलेगा, इसीलिए आपको यहीं पे रखना चाहिए. तो आई एम गिविंग यू दिस सिचुएशन कि अगर आपका बच्चा घर आता है और वो भूल जाता है, वो मोजे उतारता है, कहीं एक जगह पटक देता है, जूते दूसरी जगह, एक इस कॉर्नर में, दूसरा दूसरे कॉर्नर में, सब इधर उधर फैला हुआ है, एंड आपकी एक्सपेक्टेशन है कि उसने वो सारी चीजें अपनी जगह पर रखना चाहिए. तो इस सिचुएशन में डजंट मैटर कि आपके पास पेशेंस कम है या ज्यादा है, डजंट मैटर. आप बस ये सोच के बताओ या सोचो कि इनमें से आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो. डोंट ट्राई टू गिव एन आइडियलिस्टिक आंसर, बट ट्राई टू ऑब्जर्व योरसेल्फ कि आपका खुद का रिस्पॉन्स कैसा होता है. क्या आप ये सोचते हो कि बच्चे को आराम कर लेने दो, थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं रिमाइंडर दे दूंगा या दे दूंगी, एंड मे बी आई विल से कि ठीक है हम दोनों साथ में मिलके कर लेते हैं, तुम भी थके हो मैं भी थकी हूँ तो साथ में कर लेंगे. और you just shout at them कि अभी तुरंत उठो, तुरंत रखो, बहुत आराम हो गया है अभी, चलो उठ जाओ. क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना, जब बच्चा आर्ग्यू करता है तो वो बोलते हैं कि मैं बोल रही हूँ इसीलिए आपको रखना है. क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि बच्चों को जब कोई चीज बोली जाती है तो वो मम्मी से आर्ग्यू करते हैं कि पापा ने भी तो जूते इधर रखे हुए हैं, आप मुझे क्यों बोल रही हो, उनको भी बोलो. ऐसी भी सिचुएशंस आती हैं. तो कई बार जब पेशेंस थिन हो जाता है तो पेरेंट्स आर इन अ कंडीशन वेयर दे स्पॉन्टेनियसली बोल देते हैं, इम्पल्सिवली बोल देते हैं, मैं बोल रहा हूँ ना इसलिए तुमको करना है.
उसमें कोई चॉइस नहीं है। अथॉरिटेटिव हो जाता है पेरेंट्स, अथॉरिटेटिव हो जाते हैं, करेक्ट, वी आर कमिंग टू दैट। या आप तीसरा तरीका अपनाएंगे कि ठीक है, बच्चे तो बच्चे हैं, वो इधर उधर चीजें पटक देते हैं, तो बाद में कर लेंगे, अभी चलो जाने दो, नहीं करते, उनको भी नहीं बोलते, अपन भी नहीं करते, पड़े रहने दो। एक चौथा ऑप्शन शायद ये हो सकता है कि ठीक है, जहां है वहां है, पड़ा रहने दो, और जब कल नहीं मिलेगा ना, और कल स्कूल जाएंगे और पनिशमेंट मिलेगी कि एक पैर में सफेद और एक पैर में काला क्यों पहना है, जब ऐसी सिचुएशन आएगी, या खुद को टाइम से नहीं मिलेगा, जब बस छूट जाएगी, तब खुद ही अकल आ जाएगी। ये कुछ ऐसे नोशंस रहते हैं, तो आप रियलिटी से उसको परे कराना, राइट। तो आइडियलिस्टिकली कैसे, नॉट आइडियलिस्टिकली बट आज आपके बिहेवियर में आप कैसे रिस्पॉन्स करोगे या करते हो, जस्ट टेक अ लुक एंड आई विल टेल कि ये हर एक ऑप्शन जो मैंने यहाँ दिया है, इट टेल्स समथिंग अबाउट योर पेरेंटिंग स्टाइल। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। आपका बच्चा एक स्पॉन्ज की तरह होता है। जैसे आपने एक सूखे हुए स्पॉन्ज को, इफ यू पुट इट इन वाटर, इट इज गोइंग टू सोक इन एवरीथिंग एंड इट इज गोइंग टू गेट हैवी। तो आपका बच्चा हर चीज सोक कर रहा होता है, आप जो भी कर रहे होते हो वो सोक कर लेता है। सो फर्स्ट जो एक ऑप्शन मैंने दिया था कि हम साथ में करते हैं, उसको थोड़ा रेस्ट करने के बाद में रिमाइंडर दिया कि वी विल मेक इट अ टीम वर्क। तो ऐसे पेरेंट्स जो हाईली डिमांडिंग और हाईली सपोर्टिव होते हैं, दे कम इन दिस कैटेगरी। I will be describing them later on in the slides. Authoritarian parents, जैसे मयंक ने ऐड किया था कि वो डिमांडिंग होते हैं, बट they will just say कि मैं बोल रहा हूँ ना, इसलिए करना है, and they will not stand with you. And next is like permissive parenting, जहाँ उनके कोई डिमांड्स नहीं होते हैं as such, but वो बहुत nurturing होते हैं बच्चे की तरफ। And neglectful parents जो usually uninvolved रहते हैं बच्चों के तरफ। तो coming to, let me explain it in an elaborative manner कि जो authoritative parenting होती है, यहाँ बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रहती है। जैसे आपको पिक्चर में एक छोटा बच्चा दिख रहा है जो 4 years का है, उसके बाजू में उसके फादर खड़े हैं, ही इज माय नेफ्यू, और उसे उस दिन जो खाना बना था उसे वो नहीं खाना था, और ये मेरे सामने की कहानी है, ये पिक्चर मैंने खींचा है। उसे नहीं खाना था वो, और उसने बोला कि नहीं, मुझे तो पराठा और जैम ही खाना है। अब क्योंकि खाना बना हुआ था और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है कि नहीं बना, अब तो नहीं बनेगा दोबारा, और अगर बनेगा तो यू कैन नॉट प्ले, यू विल ऑल्सो हैव टू बी इन्वॉल्व। तो वहां वो फादर भी खड़े हुए, वो खुद ऑफिस से आए थे, बट ही वाज स्टैंडिंग देयर विथ हिम कि ठीक है, हम दोनों साथ मिलके करते हैं। तो पेरेंट्स की हाई एक्सपेक्टेशन है, वो जो बच्चा बोलता है, जो ओपिनियन है बच्चे का, वो 4 साल का तो है, बट उसका जो ओपिनियन है, अगर आप उसको बोलो कि नहीं आज तो लौकी बनी है, लौकी तो खानी पड़ेगी, हमें नहीं पता, अब दोबारा खाना नहीं बन सकता, तो इसमें आप इम्पोज कर रहे होते हो बच्चे के ऊपर। कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि हाँ और कुछ ऑप्शन ही नहीं है, तब आपको बच्चे को मनाना पड़ता है, बट ऑन ऑल अदर ओकेजन्स मे बी आपके पास एक चॉइस होती है कि आप उसके ओपिनियन को वैल्यू करो, आप उस पर इम्पोज मत करो चीजें। और जैसा कि इस पिक्चर में भी दिख रहा है कि पेरेंट इज सपोर्टिव, वो गैस के पास में काम कर रहा है, and they need to be really careful about it, तो they made it a team work. अच्छा, ऐसे में जब ये बच्चे ये ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल से जब ये बच्चे ग्रो होते हैं, तो इन देयर फ्यूचर लाइफ, इन एज एडल्ट्स, दे विल हैव वेरी हाई सेल्फ एस्टीम एज चिल्ड्रन। उनके सोशल स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उन्हें घर में एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है जहाँ पे वो ये समझते हैं कि सब मुझे समझते हैं, और मैं जो बोलता हूँ उसका कुछ वैल्यू है, कुछ वेटेज है। इट्स नॉट दैट कि मैंने बोला और आया गया हो गया, या किसी ने मेरे ऊपर कुछ इम्पोज कर दिया। वो छोटी सी बात होगी, बट आप नेगोशिएट करके उससे दोनों सेम पेज पे आते हो, एंड देन यू डू सर्टेन थिंग्स। और ये बच्चे इमोशनली बैलेंस्ड भी होते हैं, वो बहुत अच्छे से लोगों के साथ जेल इन हो पाते हैं, और बिकॉज बच्चा ऑन ऑल फ्रंट्स ही इज डूइंग गुड, तो वो एकेडमिकली वैसे ही अच्छा करता है। तो देयर इज, दैट्स हाउ आई हैव पुट इट इन द last line. Next, जो authoritarian parenting होता है, like I said कि because I am saying so you have to get this done, तो
ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों से बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो उनसे कम्युनिकेट नहीं करते हैं, बट लाइक द एग्जाम्पल सेज कि कमांड करते हैं, वो अथॉरिटेरियन वे में उनको बोलते हैं कि दे लीव नो अदर ऑप्शन विद देम एंड दे से कि क्योंकि मैंने बोला है आपको करना है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है, बट बिकॉज आई एम सेइंग सो यू हैव टू डू दिस। तो इसमें आउटकम ये होता है कि बच्चे और पेरेंट के बीच में हमेशा एक फ्रिक्शन रहता है और बच्चा एंग्री होने लग जाता है, उसे लगता है कि मुझे कोई समझता नहीं, उसकी सेल्फ एस्टीम बहुत कम हो जाती है क्योंकि उसे लगता है मेरे ओपिनियन को कोई वेटेज नहीं दिया जाता, नोबडी वैल्यूज मी, नोबडी लव्स मी। और वो क्योंकि वो घर में गेट अलोंग नहीं कर पा रहा है तो वो ये सारी चीजें बाहर वालों पे भी प्रोजेक्ट करता है, वो सोचता है कि बाहर वाले भी ऐसे ही हैं तो दे कैन नॉट गेट अलोंग विद द अदर्स। घर में कोई दूसरा भी आता है तो उन्हें वही तकलीफ होती है, और क्योंकि वो अपनी इमोशंस मैनेज नहीं कर पा रहे, वो इमोशनली डिस्टर्ब्ड होते हैं। और कॉन्डक्ट डिसऑर्डर्स बहुत देखने को मिलता है। कॉन्डक्ट डिसऑर्डर्स क्लिनिकल टर्म्स में उसका सिंप्लीफाइड वर्जन ये है कि जो बच्चे, कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा हमारी बात नहीं मानता, बहस करता है, इंसल्ट करता है, सो दीज आर इंक्लूडेड इन कॉन्डक्ट डिसऑर्डर्स। तो जो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग होती है वहां पेरेंट का इंप्रेशन ये होता है कि हम बच्चे को डिसिप्लिन कर रहे हैं, बट इन अ वे आप बच्चे को कुछ और ही सिखा रहे हो, वो एंग्री हो जाता है। यस यस मैम, कहीं ना कहीं ऐसे जब ऑथराइजेशन पेरेंटिंग का हो जाता है तो कहीं ना कहीं बच्चे भी अडेप्टेबिलिटी जो होती है ग्रुप में, जब कल को बड़ा होगा ग्रुप डिस्कशंस या एक सोसाइटी में जब वो बैठते हैं और अच्छे लोगों के साथ, लाइक माइंडेड लोगों के साथ भी वो बैठे हैं या डिफरेंट फील्ड्स ऑफ बैकग्राउंड के लोगों के साथ भी बैठे हैं, अडेप्टेबिलिटी उनमें नहीं आ पाती है और वो कनेक्शन नहीं बना पाते हैं बहुत सारे लोगों के साथ, बिकॉज दे फील लेफ्ट आउट। अभी या तो उनका कुछ डिसऑर्डर इस तरह हो जाता होगा कि वो या तो स्टबर्न हो गए कि हम ऐसे हैं, एंड अदरवाइज जैसे अडेप्टेबिलिटी में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं तो कहीं ना कहीं वो स्टबर्न हो जाते हैं, या तो फिर वो अपने आप को भी सेल्फ कॉन्फिडेंस में उतना नहीं रख पाते हैं, तो बोथ हो जाते हैं, या तो स्टबर्न होगा या फिर लेस जैसे आपने देखा लो सेल्फ एस्टीम वाले हो जाते हैं। Exactly, true. Thank you for adding that. Let me move to the next टाइप ऑफ पेरेंटिंग जिसको हम परमिसिव पेरेंटिंग बोलते हैं। तो इस कैटेगरी में वो पेरेंट्स होते हैं जो बच्चे को बहुत प्यार देते हैं, वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, वो बहुत इंडल्जेंट होते हैं। बच्चे ने आह भी किया, वो गिर भी पड़ा तो वो दौड़ के जाएंगे, या उसको थोड़ी सी तकलीफ हुई, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हुआ, हॉस्टल में गया है, वहां नहीं रहते बन रहा, तुरंत जाएंगे और तुरंत ले आएंगे। तो दे आर वेरी मच अटैच्ड टू देयर किड्स, वो डिमांड कुछ नहीं करते। जो पेरेंट्स होते हैं, क्या बोल रहे हैं मैं? पेन जो होता है, पेन बच्चों को फील नहीं कराने देते, हार्डशिप्स। एग्जैक्टली, वो बहुत नर्चरिंग होते हैं, वो पेन फील नहीं होने देते बच्चों को, वो हमेशा उसे कंफर्ट बबल में रखते हैं और वो सेव करते हैं उस कंफर्ट बबल को कि वो कहीं ब्रेक ना हो जाए। तो वो बच्चे को पूरा फ्रीडम भी देते हैं और उन्हें ये भी पता होता है कि हाँ शायद इससे बुरी आदतें लग जाएंगी या उसका एटीट्यूड खराब हो जाएगा या वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। एट दिस रिस्क वो उसे फ्रीडम देते हैं। एंड क्योंकि वो डिमांडिंग नहीं होते, तो ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो उन्हें लगता है कि हर चीज मेरी अथॉरिटी से मुझे मिल जाती है, मांगना होता है और मिल जाती है। पापा मम्मी जिन के जैसे होते हैं कि आपने ऐसे रगड़ा और जिन आ गया और वो आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर देगा। तो ऐसे बच्चे जब बाहर जाते हैं तो उनके फैमिली में तो उन्हें बहुत सिक्योरिटी मिलती है क्योंकि उनकी हर जरूरत पूरी होती है, उनकी हर ख्वाहिश पूरी होती है, हर नखरा सहा जाता है। और जब वो बाहर जाते हैं तो बाहर की दुनिया तो बहुत हार्श होती है। तो बाहर की दुनिया में ना टीचर सुनती है, ना दोस्त सुनते हैं, लेटर लाइफ में ना बॉस सुनता है और मैरिड लाइफ में ना वाइफ सुनती है या ना हस्बैंड सुनता है। तो हर जगह एडजस्टमेंट चाहिए होता है। फिर ये बच्चे इनसिक्योर अडल्ट्स बन जाते हैं, उनकी लैक ऑफ बाउंड्रीज होती है। उन्हें लगता है कि एक तरफ वो कॉन्फिडेंस में लो भी हो सकते हैं या फिर वो बहुत एडमेंट भी हो सकते हैं, वो एडजस्टेड नहीं होते हैं, उनका पुअर सोशल एडजस्टमेंट बहुत पुअर होता है, एकेडमिक सक्सेस बहुत पुअर होता है, उनका मोटिवेशन ना के बराबर होता है। और जो सेल्फ मोटिवेशन, वो सेल्फ सेंटर्डनेस, सॉरी दो चीजें अलग बोल रही हूँ, सेल्फ मोटिवेशन नहीं रहता है और वो सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं कि हमारे घर में तो ऐसा होता था, यहाँ तो ऐसा होता नहीं है, तो हमें तो यहाँ रहना नहीं है, ऐसी लाइफ हमें चाहिए नहीं, और वो दौड़ दौड़ के उस कंफर्ट बबल में वापस जाना चाहते हैं। नेक्स्ट इज
neglectful parenting, like the name suggests कि इसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो अनइन्वॉल्व होते हैं, वो उनके साथ फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, उन्हें दिख रहा होता है कि हाँ शायद बच्चा तकलीफ में होगा, बट दे आर like busy somewhere else or they don't know how to address their problems. वो वहां बैठे होंगे बट वो उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे होंगे, ठीक है अपने आप से खेल रहा है ना, खेलने तो, मुझे तो परेशान नहीं कर रहा, मैं तो अपनी मीटिंग अटेंड कर सकता हूँ। तो फिजिकल नीड्स सेटिस्फाई होती हैं, इमोशनल नीड्स सेटिस्फाई नहीं होती। घर में इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, बच्चे बस सोचते ही रह जाते हैं कि कब ये हमें सुनेंगे, कब हमारे साथ टाइम बिताएंगे। और अधिकतर ऐसे बच्चे जब अडल्ट बनते हैं तो सोशल रिलेशनशिप्स में अगेन उन्हें बहुत डिफिकल्टी होती है और वो अपने एज ग्रुप के साथ में जेल इन भी नहीं कर पाते हैं, और वो हमेशा परेशान रहते हैं कि हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, हम तो निग्लेक्टेड हैं, और सेल्फ डाउट बहुत रहता है इन बच्चों में जो निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग से उपजता है। एंड जब ध्यान नहीं दिया जाता है बच्चों की तरफ और उनके पास जो ऑप्शन होता है वो चूज कर लेते हैं, तो इट इज मोर लाइकली कि वो बैड कंपनी में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें सही गलत बताने वाला कोई नहीं होता। उन्हें उस टाइम जो सही लग रहा होता है वो चूज कर लेते हैं, बैड कंपनी भी चूज कर लेते हैं, बैड हैबिट भी चूज कर लेते हैं। सो दीज आर लाइक सर्टेन काइंड्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल्स जो हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, एंड इट इज रूटेड इन पेरेंट्स बिहेवियर, और इसके आउटकम्स बच्चों में अडल्टहुड में दिखते हैं। और ऐसा नहीं कहूंगी कि एक पेरेंटिंग स्टाइल एक ही पेरेंट में रहती है, हम सब में अलग अलग पेरेंटिंग स्टाइल्स अलग अलग सिचुएशंस में रहती है। द आइडिया इज टू मेंटेन द बैलेंस, कि कभी ऐसा मौका आता है कि आप निग्लेक्टफुल हो, या कभी ऐसा मौका आता है कि आप परमिसिव भी हो जाते हो कोई गिवन कंडीशन में, अथॉरिटेरियन और अथॉरिटेटिव भी हो जाते हो, बट देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन थिंग्स सो दैट आप अपने बच्चे को अच्छे से नर्चर कर पाओ। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ the presentation here, the first part that we have discussed is about parenting styles, जो कि बहुत बड़ा impact डालता है बच्चे के upbringing पे। और कम्युनिकेशन इज द सेकेंड थिंग जो बहुत ज्यादा डिस्कस होता है। पेरेंट्स अक्सर बोलते हैं कि हमें पता नहीं अपने बच्चे से कैसे इस बारे में बात करें, क्या बात करें। कुछ टॉपिक्स होते हैं, चाहे वो स्कूल से रिलेटेड हो, टीनेजर प्रॉब्लम्स हो, सेल्फ बॉडी इमेज के प्रॉब्लम्स हो, सेक्सुअल एजुकेशन हो, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें बच्चे कभी पेरेंट्स से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज जब आप कम्युनिकेट करते हो, टेक इट एज एन एग्जाम्पल कि जब वर्ल्ड वॉर भी होता है तो वर्ल्ड वॉर भी आइडियोलॉजीज का होता है, उसमें सैनिक मरते जरूर है बट आइडियोलॉजीज का होता है। तो जब वही लोग अपनी आइडियोलॉजीज को बैठ के एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो चीजें सुलझ जाती है। तो आपके घर में जब कोल्ड वॉर हो रहा होता है, मे बी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में या पेरेंट पेरेंट रिलेशनशिप में भी हो रहा होता है, तब भी अगर आप बैठ के बात करोगे तो इट विल बी अ विन विन सोल्यूशन। आप एक कॉमन ग्राउंड पे आ जाओगे, और जब आप ये करते हो तो आपका बच्चा बार्गेन करना सीखता है, वो एक लाइफ स्किल सीखता है कि हमेशा वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए है। कई बार लाइफ आपको ऐसी सिचुएशंस में रखती है जहाँ पे आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको एडजस्ट करना पड़ता है, एंड बेस्ड ऑन दैट वो बेटर डिसीजन मेकिंग पोजीशंस में होते हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करना सीखते हैं कि दे लर्न टू अग्री टू डिसअग्री, कि दूसरे बंदे का ओपिनियन कुछ और हो सकता है, वो बड़े हैं, छोटे हैं, जनरेशन गैप है, व्हाटसोएवर, बट दे लर्न दिस कि अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन होते हैं। एंड कम्युनिकेशन बनाए रखने से वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इवेंचुअली सॉल्व होता है। तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट क्योंकि बच्चे और मम्मी पापा की बात है तो कई बार मम्मी पापा साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, बदले में बच्चे भी साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। वो बोलते हैं हम खाना नहीं खाएंगे, हमें यही खाना है, आप ला के दो, नहीं तो हम ये स्कूल भी नहीं जाएंगे। और उनके पास बहुत सारी चीजें, उनके बिहेवियर्स बहुत सारे चेंज हो जाते हैं। कम्युनिकेशन जब आप करते हो तो आप एक्टिव लिसनिंग करते हो, आप आपके बॉन्ड्स बेटर बनाते हो। बीइंग अ पेरेंट, लाइक आई सेड, की कोई गाइडलाइन नहीं होती है। सेम विद अ चाइल्ड, उसे भी नहीं पता होता है कि मुझे कैसे बड़ा होना है, वो भी अपने आसपास के लोगों को देख के सीख रहा होता है, ऑब्जर्व करके सीख रहा होता है। तो कोई ऐसा मौका आता है जिसमें उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस नहीं होते हैं। हमेशा एक पेरेंट के पास अपने बच्चे की प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस नहीं होते, बट स्टिल अगर वो एक्टिवली लिसन करते हैं कि कोई पेरेंट आया, वो थका हुआ है, या कोई बच्चा है वो स्कूल से आया और वो
बहुत ही उदास दिख रहा है, तो मे बी आफ्टर लिसनिंग टू देम आपके पास इमीडिएट सोल्यूशन नहीं होगा, या आपको लगेगा कि मुझे अभी अपने बच्चे की प्रॉब्लम में स्टेप इन नहीं करना चाहिए, तब शायद आप अपने बच्चे को एक्टिव लिसनिंग करके उसको काम कर सकते हो, उसे अपनी जो इमोशनल रेगुलेशन आप सिखा सकते हो कि आई अंडरस्टैंड यू हैड अ वेरी टफ डे टुडे, आज दिन अच्छा नहीं गया, आज ठीक है, कोई कोई दिन मेरा भी होता है जो अच्छा नहीं जाता है. When you talk like that, when you actively listen to what your kids are saying, you actually make a bond stronger. और एट द सेम टाइम जब घर में कोल्ड वॉर होता है तो पूरा फैमिली स्ट्रेस में होता है, एक ऊपर है, एक नीचे है, एक अलग कोने में बैठा है, और किसी को अच्छा नहीं लगता है कि कोई किसी से नजर नहीं मिला रहा है, सब एक दूसरे को साइड कॉर्नर करके निकल रहे हैं, किसी को अच्छा नहीं लगता है. तो वो जो फैमिली स्ट्रेस लेवल्स रहते हैं वो भी मैनेज होता है अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट करते हो तो. एंड एवरीथिंग यू कम्युनिकेट गोज अ वेरी लॉन्ग वे. लुक एट दिस पिक्चर हियर. अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे को उसकी किसी हरकत पे या उसके किसी बिहेवियर पे बहुत हार्शली कुछ चीज बोल देते हैं, गुस्सा सबको आता है, ट्रू, बट अगर आप कोई ऐसी चीज बोलते हो और आप उसे बार बार बोलते हो और आप उसे करेक्ट नहीं करते, तो आपके बच्चे में वो सीड बैठ जाता है और वो ग्रो करता है व्हेन दे बिकम एन अडल्ट. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. जैसे कुछ बच्चों के टीनेज जब बच्चे रहते हैं तो उनके दांत थोड़े से बाहर रहते हैं, कुछ बच्चों के स्माइल्स जो रहती हैं तो या थोड़े दांत आगे पीछे रहते हैं, विच इज अ वेरी कॉमन थिंग. तो कई बार पेरेंट्स जब ग्रुप में रहते हैं या कहीं आउटिंग है या कुछ कल्चरल प्रोग्राम है और एनीवेयर, दे विल टेल इट इन फ्रंट ऑफ एवरी, नहीं दांत अंदर करके हंसो, तुम्हारे दांत बहुत बाहर है, मुंह बंद करके हंसो. बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा कर देते हैं कई बार अनजाने में. उनका इंटेंशन ये रहता है कि उनके बच्चे का मजाक ना उड़े, बट इन द प्रोसेस आप उसे ये बता देते हो कि यू हैव अ बॉडी इमेज इशू, और वो बच्चे के सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम में ऐसे छेद कर देता है सब तरफ से. तो आप जो बोल रहे हो वो सिंक इन हो रहा है. तो आप जो भी बोलते हो विद टाइम, आपकी जो हैबिट्स है, विद टाइम जो आपका कम्युनिकेशन पैटर्न है, आप उसे ऑब्जर्व करो कि आप क्या बोल रहे हो, बिकॉज वो बहुत डीप तक जाएगा. इट विल गो अ वेरी लॉन्ग वे. और आपका बच्चा अपने आप खुद के बारे में क्या सोचता है वो भी डिटरमाइन करता है आपका कम्युनिकेशन. देन व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन रन्स इन योर फैमिली. यहाँ पे दो पिक्चर्स हैं. एक में एक फादर अपनी बच्चा जाके अपनी मम्मी से पूछता है कि मम्मी, वो उससे पहले कि कुछ बोले तो वो बोलते जाओ जाओ पापा से पूछ लो, पापा के पास ज्यादा होता है, जाओ जाओ मम्मी से पूछ लो. तो दिस इज लाइक आप डिली डॉली कर रहे हो, आप टाल रहे हो चीजों. आपको पता होगा शायद वो किस चीज के बारे में मांग रहा है, मगर आप टाल रहे हो. तो खिलौने विलौने के बारे में इट इज ऑल राइट, बट जब आप एक यही कम्युनिकेशन पैटर्न्स जब सीरियस कॉन्वर्सेशंस की तरफ आते हैं तब भी यही पैटर्न फॉलो होता है. और बच्चे को नहीं पता होता कि किससे कम्युनिकेट करें, कौन मेरा दोस्त है, किस पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, कौन मुझे रिस्पॉन्सिबली सुनेगा, कौन मुझे जज नहीं करेगा. एंड जो सेकंड यहाँ पे एक पिक्चर है उसमें दिख रहा है कि मॉम के साथ में हम सारी चीजें एक्सप्रेस करते हैं कि चोट लग गई तो ऐसा, पापा से ऐसा पूछ लूं क्या, गर्म लग रहा है ठंडा लग रहा है, ये चाहिए, हर ख्वाहिश हर चीज आप पूछते हो. कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स से भी अटैच्ड होते हैं तो ये ऑपोजिट भी हो सकता है. और जब वो डैडी के पास जाते हैं तो डैडी पूछते हैं कि पापा, वो पूछते हैं हाँ क्या हो गया, तो मम्मी कहाँ है, एकदम से सब ठंडा हो जाता है. तो जब ऐसा कम्युनिकेशन होता है, ये आपको दिखाने का ये मतलब है कि ये शायद इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है आपके घर में, कि मदर के साथ आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन है. अब जब आपको कहीं एडमिशन लेना होगा तब तक पापा विलन वाले रोल में रहते हैं कि पापा से पूछेंगे तो मम्मी को पहले पूछो, फिर मम्मी जाके पापा के कान में बात डालेगी, एंड इट इज एन इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन. बच्चे थोड़े और बड़े होते हैं, जब वो मैरिज के एज में आते हैं 25-27, फिर पापा अच्छे दोस्त हो जाते हैं, फिर पापा के कान में डाल के मम्मी के कान में बात जाती है. तो ये जो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, इट मैटर्स. आपको समझ में आएगा कि इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन जो है हो रहा है घर में, आप उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हो, तो जब सीरियस प्रॉब्लम्स भी होगी तो बच्चा जो अवेलेबल है उसे बता नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसे एक ही बंदे के साथ वो आइडेंटिफाई कर रहा है, आइदर मॉम और डैड, और वो अवेलेबल नहीं है तो बच्चा सह रहा है.
तो ये इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन का जो कंसेप्ट है वो धीरे धीरे करके डाइल्यूट करना चाहिए और डायरेक्ट कम्युनिकेशन पे चीजें लानी चाहिए. वी विल टॉक अबाउट दैट कैसे लानी चाहिए. तो इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड, मैं अपने पर्सनल लाइफ में से आई एम टेकिंग एन एक्सर्प्ट. मैं आपको जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर कि कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए इन फैमिली. I am taking one of the memories here, so I am taking you on a vacation, just a virtual one with me. So it is a visual tour of one of the vacations where I went. This is from Indonesia, a very beautiful country, all green with rich culture, with rich heritage, and like बहुत मजा आया था वहां जाके. जैसा हम इंडिया में देखते हैं कि बहुत सारे कल्चर्स एक साथ अमेलगमेटेड होके जलन होके रहते हैं, बिल्कुल वैसा ही वहां पर था. एंड इट वाज ब्यूटीफुल. आई वाज देयर फॉर लाइक 7 or 10 days. Here is me and my husband. We were trekking on one of the live volcanoes, Mount Batur. Why I am showing you this, I'm just coming to that. Just enjoy the view right now. Okay, so meet him. He's Dr. Shreyas Pendharkar. And like I said कि बहुत ब्यूटीफुल जगह थी, ऑल ग्रीन एवरीथिंग. पर जैसे ही हम किसी कैफे में जाके बैठते थे या किसी भी होटल में जाके बैठते थे एंड वहां का वाईफाई कनेक्शन जैसे ही मोबाइल और आईपैड पे कनेक्ट होता था, तो एक तरफ मैं देखती थी कि बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छी ग्रीनरी है, लोग बहुत इंटरेस्टिंग है. और जब मैं दूसरी तरफ देखती थी तो you can see it on your screen ki how it used to look. So I am pretty creative with this picture here jahan pe wo do dolls bahut achhe expressions de rahe hain. And again we were there on a cafe thing. So I was obviously annoyed with these situations, isliye maine ye pictures khiche the. So after like being in Indonesia, there is an island there which is known as Party Island. Wahan pe we were there, so you can see that white sand, that blue ocean and the amazing people around. तो ये जहाँ हम बैठे थे वहां से लेफ्ट साइड का व्यू था, और जब राइट में मैंने देखा तो my expression tells everything कि what was going on in my mind कि क्यों ऐसा इतना अच्छा माहौल है, ऐसा है, why is he doing that. आप अपने दिमाग में जो सोच रहे हैं कि अगर आपका पार्टनर या आपका बच्चा आपके साथ होता और वो आपको हमेशा ऐसे डिवाइस पे या ऑनलाइन मिलता, तो आप कैसे सोचते. कीप आंसरिंग दैट क्वेश्चन एंड कीप लिसनिंग. तो मेरे पास अलग अलग चॉइसेस हैं कि मैं इस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड कर सकती हूँ. तो शायद मेरा फर्स्ट इंस्टेंस ये होगा कि जो सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा वो ये कि what is wrong with him, इतना अच्छा सुहाना मौसम है. So I would be that is one of the choices that I have. So maybe I am putting on a red goggle here and I am maybe thinking कि what is wrong with him, why is he doing that. दूसरा choice शायद मेरे पास ये होगा कि मैं सोचूंगी कि maybe this was a mistake. मैंने चूज किया था डेस्टिनेशन, उसे शायद पसंद नहीं था, उसे तो शायद किसी म्यूजियम या लाइब्रेरी में जाना पसंद हो, तो वो तो बोर हो रहा है. तो I will doubt myself, I will doubt my choices कि maybe he is not enjoying it. And शायद तीसरा तरीका मेरे पास ये है कि मैं सोचूं कि मुझे नहीं पता वो exactly क्या देख रहा है. Maybe he is online for a while, maybe he is reading something, I don't know. So let me focus on my welcome drink. मैं अपनी कॉफी पीती हूँ या मैं अपना जूस पीती हूँ, मेरे पास ये ऑप्शन है. या मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं सोचूं कि मैं अपने थॉट प्रोसेस के बारे में, अपने इस रिश्ते के बारे में अवेयर हो जाऊं कि मेरा पार्टनर या मेरा बच्चा, अगर मैं ऐसा सोचती हूँ बीइंग अ पेरेंट, आप उस सिचुएशन में रह के सोचिए कि मैं क्या चाहती हूँ आउट ऑफ दिस सिचुएशन. हम वेकेशन पे हैं और हम चाहते हैं कि हमारी बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो जाए. जब हम यहाँ से जाए तो हमारी लाइफ में ट्रांसपेरेंसी हो, ज्यादा ट्रस्ट हो. तो ये शायद मेरे दिमाग में चल रहा हो. मैं अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर रही हूँ और मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो भी मुझे पता है. एंड अनदर वे ऑफ, फिफ्थ वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग माइट बी कि
what is important for him. मेरे लिए तो चलो मुझे समुंदर पसंद है, मुझे हरियाली पसंद है, मुझे नई जगह जाना पसंद है, उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, उसे क्या अच्छा लगता है, तो बेस्ड ऑन दैट मैं शायद रिस्पॉन्ड करूंगी. और जब तक ये मैं सोच रही थी और ये मेरे दिमाग में थॉट प्रोसेस चल रहा था, बाय दैट टाइम श्रेयस टैप्ड ऑन माय शोल्डर एंड ही सेड कि प्रीति तुम्हें पता है ये जिस आइलैंड पे हम बैठे हैं ना, ये सिर्फ 3 किलोमीटर लंबा है और ये सिर्फ 2 किलोमीटर चौड़ा है. एंड दिस इज एन अमेजिंग फैक्ट. ही नोज, ही केयर्स फॉर मी एंड ही जस्ट टोल्ड मी दैट कि तुम्हें समुद्र किनारे वॉक करना अच्छा लगता है ना, रेत पर लहरों के साथ, तो हम इस पूरे आइलैंड का चक्कर लगा सकते हैं. हाउ केयरिंग ऑफ हिम. And he even told me all the history ki this island was actually a Japanese naval base in World War II. So he was enriching my experience with everything that he said at that point of time. But अगर मैं जो सोच रही थी वो मैं बोल देती तो मैं ये सब कुछ spoil कर देती. पूरा मूड खराब हो जाता and I'm pretty sure कि वो explain झगड़ा हो जाता. How much he cares for you and I'm pretty sure कि फिर वो उस झगड़े को कंपनसेट करने के लिए और एक्स्ट्रा टाइम लगता है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है. एग्जैक्टली. और हम उस मोमेंट में नहीं रह पाते, हम जो एनर्जी कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे हम वो नहीं कर पाते. यस, ट्रू ट्रू. तो आई गेस माय हस्बैंड सेव्ड मी फ्रॉम सेइंग ऑल दोस थिंग्स बाय जस्ट टैपिंग ऑन माय शोल्डर एट द वेरी राइट टाइम. तो मैं आपको ये सारी चीजें क्यों बता रही हूँ, आप यही सारी चीजें अपने कम्युनिकेशन में अपने बच्चे या अपने पार्टनर के साथ करके देखिए. आपके पास हमेशा 5 चॉइसेस हैं कि जब आप रेड स्पेस में हो, जहां पे मैं एक अटैकिंग पोस्चर में थी कि व्हाट इज रॉन्ग विद दिस पर्सन, या जब मैं येलो स्पॉट में थी, जब मैं येलो कलर के चश्मे से उसे देख रही थी, तो शायद मैं सोच रही थी कि दिस इज नॉट इनफ, आई एम नॉट इनफ, मैं सेल्फ डाउट, उसे मजा नहीं आ रहा है, मुझे आ रहा है तो क्या, उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, मैंने तो उस बारे में सोचा ही नहीं. जब मैं ग्रीन स्पॉट पे थी, ग्रीन चश्मे से देख रही थी, तो आई वाज लाइक, आई वाज काम डाउन, आई वाज वेटिंग, आई वाज थिंकिंग कि what am I thinking, what am I telling myself, I was waiting. जब मैं ये ब्लू स्पॉट में थी तो I was actually being curious about मैं इस रिश्ते सिचुएशन से क्या चाहती हूँ, मैं अवेयर थी. और जब मैं पर्पल चश्मे से देख रही थी उस सिचुएशन को, तो मे बी शायद मैं ये देख पा रही थी कि उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है. बिकॉज जब हम एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट देते हैं, ये हर रिश्ते पे लागू होता है. बिकॉज आज हम पेरेंटिंग वर्कशॉप कर रहे हैं, तो स्पेसिफिकली इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि आप अपने बच्चे को अगर रिस्पेक्ट देके बात करोगे, रिस्पेक्ट देके उसकी बात सुनोगे, तो वो आपको बदले में रिस्पेक्ट देगा. सबके साथ ऐसा टाइम आता है जब आपका पेशेंस थिन होता है, आपको अच्छा नहीं लगता है, एंड आप इम्पोज करना चाहते हो कुछ चीज अपने बच्चे पे. आपका पेशेंस थिन हो जाएगा, आप कुछ बोल दोगे, बट डू यू गो बैक एंड डू यू अपोलोजाइज दैट आई एम रियली सॉरी, आई एम अपसेट अबाउट इट, डू यू करेक्ट योर मिस्टेक्स? दैट इज इम्पोर्टेंट. सो लेट मी इलैबोरेट दिस इवन फर्दर. तो जब मैं रेड कलर का चश्मा पहनी हुई थी, तो मैं इसे इक्वेट करती हूँ विद क्वालिटीज ऑफ अ जैकल. जो सियार होता है, आपको सबको पता होगा सियार कैसा होता है. वो बहुत ही गुस्सैल होता है, अपॉर्चुनिस्टिक होता है, वो हमेशा अटैक करने को देखता है. तो जब हमारे पास, हम इस सिचुएशन में होते हैं, और आई मीन सिचुएशन तो एक जैसी होती है, बट हमारा परसेप्शन उस सिचुएशन का जैसा होता है. अगर हम उसे अटैकिंग वे में देखते हैं तो मे बी हम मिसबिहेव करते हैं, हम ब्लेम करते हैं, हम कंप्लेन करते हैं, और हम हमेशा ये मनवाना चाहते हैं कि आई एम राइट, यू आर नॉट, आई एम राइट. और जो सबसे बड़ा गेम हम इस नजरिए से खेलते हैं वो ये है कि हम जज करते हैं दूसरे लोगों को, कि हमें लगता है कि हमारी थॉट्स हमें पता है, उनकी थॉट्स हमें नहीं पता है, तो वो जैसा जो भी कर रहे हैं हमने उन्हें डायरेक्टली जज कर लेना है. तो आप अपने बच्चे को भी जज करते हो. रेड जोन में जैसा आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इंसान दूसरे के शूज में झांक के नहीं देखता है, स्टेप करके नहीं देखता है. एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू से दैट. तो हम जज करते हैं, हम कंप्लेन करते हैं, तो हम बहुत ही मिसबिहेव करते हैं जब हम इस तरीके से किसी से कम्युनिकेट करते हैं. तो
मेरे जितने यहाँ आज व्यूअर्स हैं और फ्यूचर में भी जब होंगे, तो आई चैलेंज ऑल ऑफ यू टू गो ऑन अ मेंटल डाइट। कि आप अभी तो हम सब ऑनलाइन हैं, ऑनलाइन जिंदगी जी रहे हैं वर्चुअल वर्ल्ड में भी, तो भी आप ये देख सकते हैं कि जैसे आपने किसी की प्रोफाइल देखी, आपने फोटोज देखे, आपने किसी पर्सन से बात की, तो आरंट यू लाइक जजिंग देम? जैसे फेस टू फेस होता था तो कोई बंदा गेट से एंटर होते ही यू आर लाइक आई एम इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, अच्छा है बुरा है, यू कैटेगराइज देम एंड बात करनी है नहीं करनी है, सो you are actually judging them. जब आप किसी से फोन पे भी बात करते हो तो you are judging them. तो आप अपने आप को देखो, उस डाइट में जाके देखो, मेंटल डाइट, कि आप एक दिन में कितने लोगों को जज कर लेते हो डिस्पाइट नॉट हैविंग अ डिग्री इन लॉ. सो it is a perception that all of us should have. Next जो मैंने explain किया था वो था नजरिया सेल्फ डाउट का. तो ये एक हेजहॉग है, ये एक एनिमल रहता है जिसके पीठ पे बहुत सारे कांटे रहते हैं. तो जब हम सेल्फ डाउट में हो जाते हैं तो हम ऐसे कर्ल अप हो जाते हैं और हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल जैसे हेजहॉग करते हैं. तो जब हम सेल्फ डाउट की पोजीशन से किसी सिचुएशन को देखते हैं, तो पहली सिचुएशन में हम दूसरों को जज कर रहे थे, अब इस सिचुएशन में हम अपने आप को जज करते हैं. वी व्हाट टू से, वी प्ले विक्टिम्स. हम ये सोचते हैं कि हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, किसी को मेरी चिंता नहीं है, नोबडी केयर्स, नोबडी लव्स मी. और हम अपने आप को बोलते हैं कि आई एम नॉट इनफ, और कोई मुझे चाहता नहीं है, मैं ये सब डिजर्व नहीं करती हूँ. कुछ अच्छा हो रहा होगा तो भी मैं सेल्फ डाउट करूंगी कि शायद मैं इसे डिजर्व नहीं करती हूँ. तो वी लुक एट द सिचुएशंस विद दिस पर्सपेक्टिव. वो येलो कलर का जो सेल्फ डाउट का चश्मा होता है वैसे हम देखते हैं. तो एक फिलोसोफर थे जे कृष्णमूर्ति, उन्होंने बहुत फेमसली कहा था कि जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस है दैट इज टू ऑब्जर्व आवरसेल्व्स विदाउट जजिंग. तो ये एक सिचुएशन है जिससे आपको अगेन बचना है, बिकॉज इससे आप अपनी सेल्फ एस्टीम भी खराब करते हो, और इस प्लेस से जब आप कम्युनिकेट करते हो तो कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ जाता है. पहली सिचुएशन में तो इट इज अ ब्लास्ट, सेकेंड सिचुएशन में भी कम्युनिकेशन बहुत पुअर हो जाता है. नेक्स्ट दैट आई टॉक्ड अबाउट वाज ग्रीन गॉगल्स, जिसको मैंने वेट कहा था, WAIT. What am I thinking? What am I telling myself? तो ये एक मीर कैट है. मीर कैट मेडागास्कर में पाया जाता है. मीर कैट जैसे हम अपनी लोकेलिटीज में, विसिनिटीज में हमने नेवला देखा है, वैसा कुछ दिखता है वो. और मीर कैट की एक क्वालिटी होती है कि उनकी कम्युनिटी में वो सेंटिनल ड्यूटी देते हैं. मतलब एक पहरेदार रहता है और वो घंटों तक ऐसा खड़ा रहता है स्ट्रेट, और वो देखता रहता है. वो घंटे तक खड़ा रह सकता है बिना हिले, सिर्फ अपनी नजर और सिर्फ अपनी गर्दन हिला के वो खड़ा रहता है. वो सिर्फ वेट करता है कि कोई हलचल है, मैं अपने परिवार को कैसे बचा सकता हूँ, कोई वल्चर है, कोई बाज है जो आ रहा है, या कोई स्नेक है जिससे मुझे अपनी फैमिली को बचाना है. तो जब हम इस पोजीशन में रहते हैं तो हम वेट करते हैं, दूसरे के परसेप्शन को समझना चाहते हैं, और हम रिएक्ट नहीं करते. हम क्यूरियस हो जाते हैं, हम विजिलेंट हो जाते हैं, हम माइंडफुल हो जाते हैं कि हियर एंड नाउ में रह के हम चीजें देखते हैं. तो जब आप इस नजरिए से, इस पहलू से अपने कम्युनिकेशंस को अप्रोच करते हैं तो आप किसी डिटेक्टिव की तरह होते हैं, ब्योमकेश बख्शी या शर्लॉक होम्स की तरह, और आप ग्रो करते हो, बिकॉज आप इमीडिएटली जज नहीं कर रहे, ना दूसरे को ना खुद को, बट यू आर काम इनफ, यू आर वेटिंग कि हाँ खुद ही पता लग जाएगा. अजम्पशंस मत लगाओ, थोड़ा सा वेट कर लो, एंड द किड विल कम टू यू एंड दे विल टेल कि क्या गलत है. तो कई बार ये सिचुएशन आने को, क्योंकि कम्युनिकेशन पैटर्न्स खराब होते हैं, तो बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं, 40 साल 50 साल के हो जाते हैं, उनके मम्मी पापा और ओल्डर एज में होते हैं, तब तक भी वो कम्युनिकेट करना नहीं सीख पाते. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी यंग एज राइट नाउ. तो आई गेस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. फोर्थ जो था दैट वाज अबाउट बीइंग अगेन डिटेक्टिव. जैसे मैंने इसमें डॉल्फिन इसलिए डाली है बिकॉज डॉल्फिन इज वेरी प्लेफुल, इट इज वेरी क्यूरियस,
और हम सेल्फ अवेयर रहते हैं. डॉल्फिन बहुत इंटेलिजेंट, समहाउ इट अपीयर्स टू मी वेरी इंटेलिजेंट. सो हम सेल्फ अवेयर रहते हैं. हम ये देख पाते हैं कि जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उसका एंड रिजल्ट क्या होने वाला है, हम क्या चाहते हैं. जैसे आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल कि मेरी एक आंट है जिनको वो जब भी डायरेक्शन बताती हैं तो उन्हें बताना होगा राइट और वो बोलती हैं लेफ्ट. तो जब भी उनसे बोलो कि अरे मौसी वो कहाँ जाना है, उनका घर किस तरफ है, तो वो बोलेंगी राइट में है और उनका हाथ उठ रहा होगा लेफ्ट. तो समहाउ आई वुड फील कि इन्हें करेक्ट करने की जरूरत है. तो आई वुड से कि नहीं मौसी आपका डायरेक्शन सेंस बहुत खराब है. ये मैं काफी छोटी थी तब की बात बता रही हूँ. तो उनका स्पेशल सेंस बिल्कुल अच्छा नहीं था. तो आई फेल्ट दिस नीड कि मुझे उन्हें करेक्ट करना है. जब मैं थोड़ी सी उनके साथ बॉन्डिंग बेटर हुई तो मेरी मदर ने मुझे ये चीज बोली कि प्रीति तेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है. इज इट इम्पोर्टेंट कि तुझे उन्हें करेक्ट करना है या ये इम्पोर्टेंट है कि तेरा रिश्ता कैसा हो उनके साथ. सो डू यू वांट टू बी राइट और डू यू वांट दैट रिलेशनशिप. From that day onwards, I have a mountain of patience with her and I never felt the need to correct her. Okay. Next, we come to the last, जो जिस तरीके से आप देख सकते हो, जिराफ इसलिए रखा है because if you have seen giraffe or you haven't seen giraffe, at least you people know कि जिराफ कैसा होता है. तो उसकी neck बहुत लंबी होती है और उसका एक incredible vision होता है चीजों पे, क्योंकि वो बहुत हाइट से चीजों को देख रहा होता है, कौन सा चीता कौन से एनिमल को पकड़ने वाला है. सो ही हैज दैट विजन. एंड इफ यू डोंट नो, जो जिराफ का हार्ट होता है इट इज वेरी बिग, दिस साइज, मतलब इट इज ऑलमोस्ट ऑफ द साइज ऑफ अ फुटबॉल. तो जब हम इस नजरिए से चीजों को देखते हैं तो हमारा ईगो कम होता है. हम अपने ईगो को सामने नहीं रखते हैं. हम उस पर्सन को समझने की कोशिश करते हैं, हम एम्पैथाइज करते हैं और हम उनके शूज में स्टेप इन करने की कोशिश करते हैं. वी ग्रो मोर टॉलरेंट, वी ग्रो इन दैट रिलेशनशिप और हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं उनका पर्सपेक्टिव, क्योंकि हम एक हायर लेवल ऑफ मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग से वो चीज देख रहे होते हैं. तो हम अप्रिशिएट करते हैं जो दूसरा बंदा बोलना चाहता है. हम गुस्सा भी कर लें तो हम सॉरी बोल के एंड देन वी अगेन स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद देम. दैट मेक्स योर बॉन्ड इवन मोर स्ट्रॉन्गर. सो लाइक दैट की हार्ट बहुत बड़ा होता है. दैट वाज a late animation that I clicked on. So again, coming back to this कि आपके पास बहुत सारी choices हैं आपके situation में अपने बच्चे से कैसे बात करना चाहते हैं, और आप अपने बच्चे से जैसे भी बात करते हैं ये निर्धारित करता है कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप अपने परिवार में कौन से बिहेवियर्स लेके आ रहे हो, आप क्या सिखा रहे हो. और ये जो चॉइस आप करते हो कि आप अपने बच्चे से कैसे कम्युनिकेट करोगे, इससे डिसाइड होता है कि वो आपको ट्रस्ट करेगा या नहीं, आपका रिश्ता कैसा होगा और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होगी. So in the end, I would like to conclude the session here by saying that आपके बच्चे को सबसे वैल्यूएबल तोहफा जो आप दे सकते हो वो है अनडिवाइडेड अटेंशन. अनडिवाइडेड अटेंशन. अगर आप कोई चीज कर रहे हो एंड यू आर जस्ट प्रेजेंट देयर एंड यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, यू आर नॉट बीइंग माइंडफुल विद दैट कनेक्शन with your child, it doesn't work that way. So with that, I conclude today's session here. I took 2 things about parenting and improving communication with your children. तो session हम कल करने वाले हैं. उसमें हम ये कुछ चीजें लेंगे कि why kids do what they do. कई बार पेरेंट्स नहीं समझ पाते कि बच्चे ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, हमने तो सब कुछ सही किया था, या उनके बच्चे के बिहेवियर को एनालाइज करना हम सीखेंगे कल. और जो प्रॉब्लम बिहेवियर्स रहते हैं उनको आप कैसे मैनेज कर सकते हो वो हम देखना सीखेंगे कल के सेशन में. Mayank, I have few comments here, so maybe I can. Doctor, may I ask a question first before the comments? Doctor, I need to ask personally. First of all, it was a very, very, very knowledgeable and it was very thoroughly well explained through your own life experiences. The best part of your session was that
the experiences which you shared, what you have gone through in life, by within the family or in the society, that is what made your session impeccably realistic. Rather than talking about the case studies, you used your own experiences. Now coming back to doctor, as a question to me, doctor, it is easy to identify which color zone we have a perspective. जैसे हम रेड कलर जोन में है एज अ हम अथॉरिटेटिव या एक इम्पोज कर रहे हैं एज अ स्टबन पेरेंट, या हम एक अलग नजरिए से देख रहे हैं कि हम डाउट में है कि क्या मेरे कारण हो रहा है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ये इशू हो रहा है बच्चे को, या दे आर नॉट गेटिंग द बेस्ट फ्रॉम अस एज अ पेरेंट, या बच्चे हमसे वो चीज नहीं नर्चर ले पा रहे हैं जो हम देने को रेडी हैं, बट हम शायद प्यार, क्योंकि एक अच्छी कहावत है कि माँ बाप प्यार सब बच्चों को करते हैं, बट वो प्यार का फॉर्म अलग अलग हो सकता है। वो माँ बाप प्यार अपने बच्चों को करते हैं पर वो फॉर्म अलग अलग तरीके से होता है। जैसे जब मम्मी पापा चिंता करते हैं तो वो प्यार के फॉर्म में बाहर नहीं आता है, वो डांट के फॉर्म में बाहर आता है। पर मेरा जैसे आपसे क्वेश्चन था मैम कि हर माँ बाप को मालूम है कि वो रेड कलर में या येलो में या ग्रीन में या पर्पल में या ब्लू में, वो कलर चेंज कैसे करें अपने आप पे। लाइक अगर वो रेड कलर पे है और दे फील कि मैं वेट करूं ग्रीन में जाऊं, या अगर वो ग्रीन में एंड दे फील कि मैं डॉल्फिन वाले ब्लू में जाऊं, व्हाट इज दैट क्रक्स? Okay, so when I have a sheet print out here so that I don't have to go back. जब आप ये सारी जगह होते हो तो I won't say कि आप एक ही तरीके से हमेशा behave करोगे. You will be everywhere, and I have been here a lot many times. I have been a jackal lot many times. I have been really assertive at times, or I have been there. आपको झूठ नहीं बोलूंगी, but I have been there. So how to deal that particular moment and situation? Meditation करना या actually जो self speculation हम करते हैं with time, जो हम जैसे उस टाइम पे मोमेंटरीली आपने बहुत इम्पल्सिवली गुस्सा कर भी दिया, तो आपको खुद को भी माफ करना आना चाहिए, बच्चे को भी माफ करना आना चाहिए, और you come on a common ground, think about it, wait for it. जब आपको वही situation दोबारा देखने को मिले तो try not to be on these situations, try to be here. तो it is a process, hence I say कि it is a process. आप हर बार जब आपको लगता है कि आप सेल्फ डाउट में गए, आपने जज किया, आपने गुस्सा किया, उस टाइम जो हो गया वो हो गया, एकदम से चेंजेस नहीं आते हैं. इट इज अ प्रोसेस. हम किसी और को नहीं बदल सकते क्योंकि हम खुद को नहीं बदल सकते. इट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर. तो विथ टाइम, एज एंड व्हेन, आज तक शायद हमने इस नजरिए से नहीं सोचा था, आज मैंने आपके सामने ये सारी चीजें डिस्कस की हैं. मे बी टेक दीज गॉगल्स विथ यू बैक होम, ट्राई टू सी इन वेरियस सिचुएशंस, मैं इस टाइम पे मैंने कैसे किया, इस टाइम पे मैंने कैसे किया, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आप प्रैक्टिस करोगे यू विल गेट गुड एट इट. All right, doctor. Okay. So I guess there is one. Are there any questions that you can see? I can see only the last ones. Anuj Garg says, nicely explained. Rajiv sir, thank you for joining. Great session. Thank you. Kopal says it's not only for parents, it's also helping me for my married life. Absolutely, Kopal. It comes from my own experiences, so I believe it is going to help you also. Okay, thank you very much, people, for your kind comments. I agree that I had a good session because you all were present here. Kamini Parik ji हैं, उन्होंने एक question पूछा है, if we want kids to sleep on time and follow a routine, what should we do? मैम, ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं कल के सेशन में एड्रेस करूंगी. मैं ब्रीफली अभी आंसर कर देती हूँ. 2 ही लाइंस बोलूंगी कि पेरेंट्स बहुत अच्छे रोल मॉडल्स होते हैं और बच्चे बहुत अच्छे कॉपी कैट्स होते हैं. तो वी विल डिस्कस दैट. इट इज अगेन आई विल से कि कामिनी जी, इट इज अ प्रोसेस. जब बच्चा टाइम से नहीं सोता है तो कई बार शायद आपको भी सोना पड़ेगा उसके साथ में.
आदत डालनी पड़ेगी। अगर घर में चहल पहल 12 बजे तक है और आप बच्चे से एक्सपेक्ट करो कि वो 9 बजे सो जाएगा, तो शायद इनिशियली वो डांट खा के सो भी ले, बाद में ऐसा नहीं होगा इन द लॉन्ग रन। बाद में दे गेट टू चूज और फॉलो अ रूटीन। आप अच्छे बिहेवियर को रीइंफोर्स करिए, उसे अवॉइड करिए जो भी अच्छा बिहेवियर है। जो अच्छा बिहेवियर नहीं है उसको आप पनिश करो। पनिश करना मतलब मारना नहीं है। मैं ये सारी चीजें कल के सेशन में लूंगी। और अगेन ये चीज तो है कि यू सेट अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर योर किड्स। जब तक बच्चा वैसे तो हम बोलते हैं 18 साल तक के बच्चे जो होते हैं वो उसके ऊपर ही वोट कर सकते हैं, 18 साल से नीचे बच्चे छोटे होते हैं। बट मैं ये कहूंगी कि 24 साल तक आप अपने बच्चे पे अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हैं, अच्छी बॉन्डिंग बना उसके बाद भी बना सकते हैं, बट ऑन सर्टेन थिंग्स you still have a chance till he or she turns 24. So that's it, Kamini ji. I please join tomorrow and मैं बहुत elaborately I will be answering these questions. That's it for today. Doctor. Sorry, ma'am. We are looking forward to your tomorrow session, doctor. I am also looking forward to have a wonderful session tomorrow. Thank you, doctor. All right. Can we sign off? For sure.